Good morning, children. Today we are going to learn our new lesson number 2, and the name of the lesson is A Gift of Chappal. This story actually has a South Indian background. Here, some Tamil words will come in this lesson. So before starting the lesson, I want to give the summary of this lesson. Actually, this lesson is very big. It is divided into two parts. So first, I want to give you the summary so that you can understand the lesson. Then afterwards, we will go to see line by line the explanation. In this lesson, Mridu is a young girl growing up in Madras with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. Tapi means grandmother and Thata means grandfather. One afternoon, Tapi takes her to Aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi, and Meena. These are the kids uh, whom the Mridu went to meet them. When they reach there, Mridu takes off her slipper near a pair of large black ones in which one could see the clear marks of every toe on the front part of the slipper. Ravi Meena drag her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There she sees a very small kitten lying lapping up milk from a coconut half shell. Meena tells her that they found him outside the gate that morning and have hidden him from Pati, who, if comes to know about it, would leave for the Paddu Mama's house. So, this is the short summary of the lesson. Let's begin the lesson and understand one by one. First, come to the before you read. Mridu is a young girl. Now I am switch off my camera. Mridu is a young girl growing up in Madras with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi, and Meena. So here you can come to know that Mridu is a girl growing in Chennai with his grandparents. One day, she went to meet her cousins. The name of cousins are Lalli, Ravi, and Meena. So this is the background of the story. Let us start the lesson. The name of the lesson is Our Gift of Chappals. ठीक है, in English you can call chapels. So a gift of chapels. A smiling Rukumani threw open the door. Here I am giving you the explanation in Hindi so you can understand it, what is written here. A smiling Rukumani threw open the door means when the Rukumani opened the door, she was smiling. जब रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाजे खोलते समय अपना चेहरा जो था उसका मुस्कुरा रहा था. क्यों? क्योंकि कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनका हम मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं. तो उसी तरह से रुक्मणी ने भी जो मृदु थी और उसके साथ जो उसकी नानी आई हुई थी उनका स्वागत किया हंसते हुए. अब जैसे ही बच्चों ने रवि एंड मीना रस्ट आउट, जैसे ही दरवाज़ा खुला रवि और मीना घर के अंदर से आते हैं, तेजी से आते हैं और एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, रवि और मीना ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि मृदु आई है.
उनसे मिलने के लिए घर में। तो अब बच्चे होते हैं तो आप जानते हैं आपके घर में कोई आता है, आपका हम उम्र रहता है, तो आपको बहुत खुशी होती है, आप उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसे बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। तो सिमिलरली हियर द kids are also excited to say something to Mridu. That's why they dragged Mridu into the house. अब मृदु क्या कहती है, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, रुको रुको रुको, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड मतलब रोकते हुए, मृदु उनको रोकते हुए कहती है, बाय स्टॉपिंग दैम, प्लीज लेट मी फर्स्ट टेक ऑफ माई स्लीपर्स। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन। और वो उसे याद रहता है कि यहाँ पे एक और पहले से एक चप्पल, बड़ी सी एक चप्पल पड़ी रहती है, चप्पल का जोड़ा रखा हुआ रहता है, उसी चप्पल के जोड़े के बाजू में मृदु भी अपनी चप्पल उतार देती है। Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe in the front part of each sleeper. तो जो पहले से जो चप्पल रखी हुई थी, वो चप्पल थोड़ी सी उसमें डस्ट लगी हुई थी, धूल जमी हुई थी, और पसीने में तुमने देखा ही होगा चप्पलों के बीच में क्या आ जाते हैं, पैरों के उंगलियों के निशान आ जाते हैं। तो ऐसा क्लियरली वहाँ दिख रहा था। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। स्क्रोनी मतलब होता है थीन फिगर्ड, मतलब दुबले पतले। अब जो उसके ऊपर जो निशान आए थे उंगलियों के, अंगूठे और उंगलियों के, वो बहुत दुबले दुबले थे, पतले से निशान थे। तो जिससे पता चल रहा था कि ये किसी दुबले पतले इंसान की चप्पल है, जिसके पैरों के निशान, पैरों की उंगली के निशान इसमें बने हुए हैं। तो ये इतना हो जाता है फर्स्ट पैराग्राफ में। अब सेकंड पैराग्राफ, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड। अब मृदु उतना भी ध्यान नहीं दे पाती और नहीं पूछती कि किसकी स्लीपर रखी हुई है, क्योंकि बच्चे उसे जल्दी से ही अंदर खींचकर ले जा लेते हैं और घर के सीधा पीछे साइड ले जा लेते हैं। तो बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश, बच्चे कहाँ ले जाते हैं, बैकग्राउंड उनके जो घर के पीछे साइड बैकयार्ड में जो एक बीटर बेरी का पेड़ होता है, मतलब जो आप कह सकते हो कि बेर का पेड़ जो होता है, वहाँ पे वो लेके चले जाते हैं, उस पेड़ के बुशेश पर लेके चले जाते हैं उसके पास में। अब बच्चे वहाँ पे क्यों लेके जाते हैं, चलिए देखते हैं। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very thin kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो यहाँ पे हमने देखा कि there inside a torn football lined with sacking, वहाँ जैसी मृदु वहाँ गई, उसने देखी कि फुटबॉल, फटी हुई फुटबॉल होती है ना, उसको पिचका देते हैं, तो उस फटी हुई फुटबॉल के अंदर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, लाइन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और वो वहाँ पे क्या है, उसके ऊपर फुटबॉल के ऊपर बोरे डाल दिए गए, सैक मतलब बोरा, बोरे से उस फुटबॉल को ढक दिया गया है, और थोड़ी सी वहाँ पर रेत भी डाल दी गई है। जैसे हम बच्चे कभी आप देखें कोई घर से कोई पपी लेके आ जाता है तो उसके घर, उसके रहने की क्या करते हैं, उसका घर बनाते हैं। वैसे इस बच्चों ने भी क्या किया था, एक पुरानी फुटबॉल ली, उस पर पुराना सा फटा पुराना सा बोरा लिया और कुछ रेत ली, तो इस तरह से कुछ करके उसका एक घर बना दिया। लेकिन किसका घर बनाया उन्होंने, ले वेरी स्मॉल किटन, किसका बनाया, एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बिल्ली का। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, तो नारियल का जो वो होता है, नारियल फोड़ देते हैं, दो हिस्से में बढ़ जाता है, तो नारियल का जो शेल होता है, उस शेल में बच्चे क्या दिए थे, उसको पीने के लिए दूध दिए थे बिल्ली को। तो वो बिल्ली वहाँ पे बैठकर दूध पी रही थी। आपको होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वी फाउंड him outside the gate and we found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing, said मीना ने बताया मृदु को, क्या बताया, इसे हमने आज ही गेट के बाहर से लाया है। ये गेट के बाहर में म्याऊ म्याऊ का साउंड कर रही थी, म्याऊ म्याऊ चिल्ला रही थी, ऐसा मृदु ने
जानकारी दी, मीना ने जानकारी दी मृदु को। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा से पाती will leave for our Paddu Mamma's house if she knows we have a cat। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि इट्स अ सीक्रेट, ये क्या है, एक प्रकार से सीक्रेट रखा गया है। ये सीक्रेट रखा गया हुआ है, किससे रखा गया है? पाती। पाती, अब ये पाती कौन है? पाती जो है, पाती कहा जाता है, देखिए साइड में लिखा है ग्रैंड मदर को का इन तमिल। तो ग्रैंड मदर से, बच्चों की जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है ना, पाती, उनको वो पाती बोलते हैं। तो अम्मा सेज, और बच्चों की जो मीना की माँ है, वो बच्चे अपनी माँ को अम्मा बोलते हैं, ठीक है, तमिल में। और दादी जो होती हैं या नानी जो होती है, उनको पाती कहते हैं। तो दादी ने, या हम यहाँ दादी कहते हैं, तो दादी ऐसी कहती है कि अगर बच्चों ने कोई भी जानवर घर में लाया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? मामा के घर, मतलब बच्चों के मामा के घर चली जाएंगी। तो ऐसा धमकी पाती दे देती है, क्योंकि पाती को बिल्कुल जानवर पसंद नहीं होते घर में, और इसलिए बच्चों ने वो पाती से छुपाकर बिल्ली को अपने घर के बैक यार्ड में रखा हुआ है, और इसलिए कहते हैं क्या है ये, इट इज़ अ सीक्रेट। पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। अब बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे अपनी भावनाओं को यहाँ बता रहे हैं। वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट, what they are discussing, that people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, oh, don't bring that dirty creature here, said रवि। रवि थोड़ा सा चिढ़कर बोलता है। बड़े लोग तो बहुत बोलते हैं कि जानवर को मारना नहीं चाहिए, जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को ऐसा रखना चाहिए, वैसा रखना चाहिए, परंतु जब उसे सचमुच में रखा जाता है या उसके साथ जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि जानवर को घर में मत लाओ, जानवर गंदे होते हैं, जानवर हमें काट सकते हैं। इसलिए लोग अच्छी अच्छी बातें करते जरूर है जानवर के बारे में, परंतु उन्हें अपने घर में रखने से कतराते हैं। तो यही बात रवि शिकायत करते हुए कहता है कि बड़े लोग क्या कहते हैं, हमेशा लोग क्या कहते हैं कि जानवर के प्रति हमें बहुत ही दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम घर में लाने की बात करते हैं तो वो हम पर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। तो पीपल are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream, oh, you don't bring that dirty creature here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitten? Pati saw me with the glass in my hand just now. I told her I am very hungry. अब ये बहुत फनी बात यहाँ बताता है। क्या तुम जानती हो, अभी मैं जब गिलास मैं जब इसके लिए दूध लेने गया था तो पाती ने मुझे रास्ते में देख लिया था, और पाती मुझसे पूछ रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको कह दिया कि मुझे भूख लगी है, ये दूध मैं पी रहा हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस नज़र से उस दादी ने मेरे तरफ देखा तो मुझे लगा कि मेरे दादी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। तो द वे शी लुक्ड एट मी, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शायद दादी को रवि की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, कि वो शक की नज़र देख रहे थे कि रवि इससे पहले कभी अपने आप दूध नहीं पीता था, आज रवि को क्या हो गया कि ये अपने आप ही दूध पी रहा है। तो वो शक की नज़र से देख रही थी। तो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो वो क्या करता है, उसके सामने, पाती के सामने, दादी के सामने वो थोड़ा बहुत दूध को पीने के एक्टिंग करता है, ताकि उनको ऐसा लगे कि मैं सच में दूध पी रहा हूँ। फिर देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और आधी गिलास जब वो पी लिया तो दादी ने कहा कि जल्दी पियो, मुझे गिलास दे दो। टम्बलर मतलब जो भी बर्तन में था या जो गिलास में था वो मुझे वापस दे दो। पाती आई शैल वॉश इट माई सेल्फ। अब उसे वो देना नहीं चाहता था गिलास, क्योंकि गिलास में अभी भी दूध था। तो दादी को बोलता, दादी
मैं इसे खुद ही धो के रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आप चिंता मत करो, आप ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो, मैं खुद ही इसको धो के रख दूंगा, आप ज़्यादा ट्रबल मत लो। I told her I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब ये काम मुझे इतनी जल्दी करना पड़ा कहीं उसे शक ना हो जाए दादी को कि इसने अभी तक गिलास धोया नहीं, तो जल्दी से जाता है और कोकोनट शेल में बिल्ली के पास जो नारियल का जो रहता है शेल, ठीक है, उसमें जल्दी से दूध को उंडेल देता है और जल्दी से जाकर गिलास भी धोकर रख देता है ताकि दादी को शक ना हो। सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब शक होना, डाउट। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब मुझे लगता है कि महेंद्रन को कुछ खिलाने पिलाने के लिए मुझे और भी कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। अब ये महेंद्रन कौन है? महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु उसकी बात सुनती है और वो महेंद्रन का नाम का जिक्र करता है तो मृदु बहुत इम्प्रेस्ड होती है कि महेंद्रन, इस बिल्ली का नाम तुमने महेंद्रन रखा है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी केट नेम। वो कहती है ये तो सच में एक नाम जैसा लगता है, ये महेंद्रन नाम है, ये ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बिल्ली का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। अब वो उसको और एक्सप्लेन करके बताता है। रवि बोलता है कि एक्चुअली में इसका नाम सिर्फ महेंद्रन नहीं है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, जिसको तुम शॉर्ट में क्या बोल सकती हो, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुमको शॉर्ट में बोलना है तो इसको तुम MP पुन्नई भी कह सकती हो इस बिल्ली को। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये कैट की बहुत अच्छी प्रजाति है। ब्रीड का मतलब क्या होता है? ब्रीड मतलब प्रजाति या रेस। जस्ट लुक एट हर फर। आप इसके फर को तो देखो, कितने अच्छे फर है। लाइक अ लॉयंस मेन। लॉयंस के मैंने आपने देखेंगे शेर के जो बाल होते हैं गर्दन के पास चारों तरफ, उसे मेन कहते हैं, लॉयंस मेन। तो जिस तरह से शेर के गर्दन में बाल होते हैं उसी तरह से इस कैट के भी बहुत ही अच्छे फर है, बहुत अच्छे बाल हैं, जिससे ये बिल्कुल क्या लगता है, एक बहुत अच्छी प्रजाति लगती है बिल्ली की। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वाज? एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग। क्या तुम जानते हो कि पल्लव राजा लोग जो थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था, जो एम्बलम था, साइन ऑफ डायनेस्टी जो था, ठीक है, वो भी क्या था? इट लुक्ड ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो वो बहुत ही एक्सपेक्टेंटली देखती है। एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है बहुत गौर से उसकी बातों को सुन रही होती है, और वो मृदु उसकी बातों को सुनते सुनते क्या करने लगती है? गिगल करने लगती है, हंसने लगती है कि ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें बता रहा है। थिंक आई एम जोकिंग। तो फिर उसको कहता है, उसके हंसने के बाद, गिगल मतलब होता है स्माइल करना, ठीक है, मतलब अपनी हंसी को रोकते हुए हंसने की कोशिश करना। तो उसकी हंसी, मृदु को हंसी आती है उसकी बातें सुनकर। तो वो कहता है थिंक आई एम जोकिंग, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। रुको, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तुम्हारे हंसने से तो ये बात समझ में आ जाती है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में शायद कुछ पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम। तुम कभी क्या महाबलीपुरम नहीं गई? महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में एक जगह का नाम है जो इट्स बिलोंग टू द हिस्ट्री। वहाँ पे बहुत अच्छे प्राचीन मंदिर हैं जो पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए थे। तो उसी की वो बात बताता है कि हैवन बीन टू महाबलीपुरम। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली कहता है वो, मतलब
बिल्कुल संशयात्मक तौर पे कहता है, अरे तुमको तो जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं गई हो। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, वो ये बताता है कि ठीक है, जब हमारी एक बार क्लास गई थी महाबलीपुरम स्कूल की ट्रिप, तो वो अपनी पूरी बताता है कि आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अपनी बात को बड़ी बढ़ा चढ़ा के रवि बताता है कि जब मैं वहाँ महाबलीपुरम में गया था तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था। जो स्टैचू जो था वो हमारे दादाजी के भी दादाजी, दादाजी के भी दादाजी, दादाजी के भी दादाजी, दादाजी के भी दादाजी, बाप रे बाप, और ना जाने कितने साल पुराना था। ये बात बताई जा रही है कि वो बच्चे को बोलने का तरीका है कि हमारे दादाजी के भी जो दादाजी थे, और वो दादाजी के भी जो दादाजी रहे होंगे, या उस दादाजी के भी जो दादाजी रहे होंगे, उतना पुराना मैंने वहाँ पे क्या देखा था, महाबलीपुरम में स्टैचू देखा था पल्लव वंश का। ये 273 BC की बात है, जब पल्लव वंश यहाँ पे आया था या राज किया था इस एरिया में। तो वो बहुत पुरानी बात है, इसलिए वो इसको इस तरह से बात बताता है। फैक्ट इज महेंद्रन इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। अब वो बताता है कि वो क्या है, उसका डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर्स, मतलब वंशज, मतलब, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो महेंद्रन है, ये उसके पूर्वज रहे होंगे, तो ये उसका एक वंशज है। दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, एक क्लोज रिलेटिव, तो उसका एक क्लोज रिलेटिव हो सकता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। वो साइंटिफिकली मतलब किसकी बात बता रहा है, शेर की बता रहा है कि शेर की ये क्या है, डिसेंडेंट हो सकता है, क्योंकि ये उसके ही परिवार का है। बिल्ली और शेर एक जैसे ही दिखते हैं, एक ही जेनर के हैं वो। तो द पल्लव लायन एम्बलेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, तो जो पल्लव लायन थे, मतलब जो उनका प्रतीक स्तंभ था, वो भी एक शेर का था, और ये पल्लव डायनेस्टी को बताता था, पल्लव वंश को बताता था। रवि वेंट ऑन टॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। अब ये थोड़ा इतराते हुए रवि क्या करता है, अपनी बातों को बोलता है, और वो जो बेर का पेड़ था, उस बेर के पेड़ के पास में इधर उधर मस्ती करते हुए वो अपनी बातों को बोल रहा होता है। और उस समय क्या करता है, वो उसको बिटरबेरी बुश को क्या करता है, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, तो वो एक पेड़ की डगाल पकड़ लेता है और उसको हिलाते रहता है बात करते समय। हिज आइज स्पार्कलिंग, और जब वो बात कर रहा होता है उसकी आंखें चमकती है। स्पार्कलिंग मतलब क्या होता है, शाइन, शाइन, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मतलब शाइन करना। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worships cat in ancient Egypt. तो यहाँ बताता है कि दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो कहता है कि शायद ये भी महाबलीपुरम के किसी ऋषि कैट का ही कोई ना कोई वंशज होगी। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, कि इजिप्ट में कैट की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। तो ये उसको हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारी मृदु को देता है रवि। और नेक्स्ट, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और जब वो अपनी बातें बोलता है रवि, तो अपनी ही बातों पे खूब इतराता भी है। तो अपनी बातें बोलते बोलते जो इतराता रहता है और उसको बहुत अच्छी लगता है अपनी बातें बोलना, तो ये चीज़ देखकर मीना और मृदु जो होती है, एक दूसरे की तरफ देख के हंसती है कि ये बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज दे रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा है। तो इस तरह से वो उसके एक तरह से वो हंसती भी है उसकी बातें सुनकर। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। तो व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, हमें क्या करना है इन सब चीज़ों से। तो इस तरह की बात बोलती मृदु। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। तो उसकी बातें, रवि की बातें सुन के वो कहती कि हमें इन सब चीज़ों से क्या करना है, इस हिस्ट्री से क्या करना है।
तो वो कहता हूँ मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये इजिप्शियन कैट गॉड की क्या है, डिसेंडेंट है। नो, वो फिर वो कहता अपनी गॉड नहीं, गॉडेस। तो गॉडेस क्या है, तो गॉडेस को जो इजिप्शियन गॉडेस होती है उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस्टेट। क्या कहते हैं, बेस्टेट। ये देखिए यहाँ पे जो बेस्टेट लिखा हुआ है, बेस्टेट मतलब होता है गॉडेस। तो यदि हाँ, तो मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ बेस्टेट की। बेस्टेट, ये देखिए ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये है गॉडेस बेस्टेट। देखिए इसमें जो चित्र दिख रहा है, चेहरा भी दिख रहा है, वो बिल्ली के ही जैसा है। तो बेस्टेट इज ए इजिप्शियन गॉडेस। तो नेक्स्ट, so well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav sheep, and his descendant was the महाबलीपुरम ऋषिकेट। तो स्टोवावे का मतलब होता है छुप छुप जाना, छुप कर बैठना। तो शायद वो ऐसे अब अंदाज़ा लगाता है कि हो सकता है कि कभी ये कैट गॉडेस जो है, ये क्या होती, पल्लव वंश की जो शिप थी उसमें कहीं छुपकर आ गई होगी अपने यहाँ पे। तो शायद जब से वो यहाँ पे और महाबलीपुरम पहुँच गई होगी। तो इस तरह की वो कुछ बातें बताता है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोराइज्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। और जब ये बात वो बताता तो रवि क्या करता है, वो जो बेर की पेड़ की जो एक डाली को पकड़ के रखता है उसको हवा में हिलाता हुआ और कुछ कुछ महेंद्रन के पास भी उसके चेहरे पर वो करता है। एमपी पुनई हियर उफ इक, ही श्रिक वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। और उसको बताता कि देखो इसके बारे में बात करने पर ये भी कितना खुश हो रहा है। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. तो जो बिल्ली है, जो बिल्ली है वो महेंद्रन नाम जिसका है, महेंद्रन लुकड अप, महेंद्रन भी ऊपर, बिल्ली भी ऊपर देखती है। अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब जो उसके पंजे नाखून हैं, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट, तो कोकोनट के ऊपर वो अपने नाखून मार रही है बिल्ली। बट होर्स वट वॉर्स then Ravi's ooful oof, it was a crich from the window that a weird sound. लेकिन उसके खरोचने में उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही जितनी आवाज़ बाजू के किसी कमरे की खिड़की से आ रही है। तो ये बता क्रिच क्रिच की आवाज़, क्रिच इज अ साउंड ऑफ साउंड, इरिटेटिंग साउंड फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड, ये कितना मतलब कानों को परेशान करने वाला स्ट्रेंज साउंड है। वियर्ड, वियर्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज। देखिए बाजू में लिखा है, इफ मृदु वॉज स्टार्ट, स्टार्ट मतलब सरप्राइज्ड, तो मृदु को बड़ा सरप्राइज लगती है। एमपी पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स वीट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड एंड बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स ए बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। अब वो आवाज़ इतनी तेज होने लग जाती है तो जो महेंद्रन मतलब जो बिल्ली है वो भी डरने लग जाती है, और डर कर वो क्या होती है, भागने लगती है वहाँ से। और भागती कहाँ पे, वहीं पर एक टोकनी होती है बांस की। उस टोकनी में क्या होता है कि घर के लोग लाल मिर्च को सुखाने के लिए रख देते हैं। तो उस टोकनी के अंदर वो बिल्ली घुस जाती है डर के मारे। स्करिड, स्करिड का मतलब होता है रन विथ बाय इन फियरिंग, रन व्हेन यू फील सम फियर। Chilies trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. और वो अपने ऊपर भी कुछ मिर्ची डाल लेती है बिल्ली। म्याओ, ही हॉल्ड मिजरेबली, और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लग जाती है। होल्ड, होल्ड मतलब आवाज़ निकालना, मिजरेबली मतलब बहुत ही डर के। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेट मृदु। तो मृदु पूछती है कि ये तो आवाज़ बढ़ते चली जा रही है, ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो हम यहाँ का लेसन अब यहीं तक देखेंगे। अब इसके बाद का जो लेसन होगा वो आपको कल या परसों मिलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन पार्ट
of this lesson. Okay, goodbye. Have a nice day. Stay home. Thank you very much.